Hello everyone. So today we're going to cover factorials. We're going to start from very basic concepts like what is factorial, and then we're going to cover all type of questions that can be asked from the factorial. So first let's understand what is the factorial, what it means and how it is represented and all the basic things regarding factorial. So you might have seen this symbol after a number. This symbol after a number, this is called factorial. This is called as 8 factorial. And sometimes this is also represented as like this. This also same thing. This is also called factorial. Few of you may not aware of this symbol. So make sure you know that this is also represented as factorial. So these are the two ways in which factorial can be represented. So let's understand what it means. So whenever factorial is mentioned in a number like this n factorial, or this is like as like this n factorial, so this means this is a number that is the multiplication of first n natural numbers. So n factorial means n factorial equal to 1 into 2 into till n, multiplication of first n natural numbers. So like 5 factorial. 5 factorial means the value of 5 factorial is 1 into 2 into 3 into 4 into 5. Multiplication of first 5 natural numbers. That is as simple 120. I hope now you understood what means by like factorial and how it is represented in a number. Sometimes it is represented like this, sometimes it also represented like this. Simple. So definition of factorial, I expect many of you may know. जिसको नहीं पता है, just note down this definition, that multiplication of first n natural numbers. N factorial, the value of this will be multiplication of first n natural numbers. Suppose this is 7 factorial. So 7 factorial is the multiplication of first 7 natural numbers that are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. इनका multiplication. Whatever value will be, that will be your 7 factorial, that is 4050. Right? Next thing. Like I'm going to write few numbers that you need to remember, like value of 0 factorial is 1. This was the like that you must know. 1 factorial 1, 2 factorial 1, 3 factorial 2 factorial 2, 3 factorial 6, 3 1 into 2 into 3 है ना, 4 factorial that is 24, 5 factorial 120, 6 factorial 720, 7 factorial 5040. What I have written here, right? 8 factorial 40320, 9 factorial I also don't know, 10 factorial. Okay, तो देखो तुम्हें करना क्या है, you have to memorize these results. तुम्हें ये result याद होने चाहिए. In the exam, suppose at any point you need 7 factorial, so you should not like do like multiplication 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. You just know, just memorize that 7 factorial is 5040. Fine. So I expect like यहाँ तक तो आसान है. 6 factorial, it's simple to remember. Just you need to remember these three. These three just you need to remember. ये कैलकुलेटर से अपना लिख लेना, इसको 9 से मल्टीप्लाई करोगे है ना, आ जाएगा 9 into 40320. अब ये जो भी नंबर आएगा, सपोज ये x आएगा, उसके आगे एक 0 लगा दोगे, 10 factorial ऑटोमेटिक हो जाएगा. सो ट्राई टू रिमेंबर दिस. एटलीस्ट 10 factorial तक वैल्यूज डायरेक्टली याद रखो. वेर एवर इन द एग्जामिनेशन इट रिक्वायर्ड, यू आर एबल टू राइट इट विदाउट एनी कैलकुलेशन. Fine. This will be helpful, and this will be also helpful in the PNC part. We'll see in PNC, like I will also explain why 0 factorial is 1. And this was also one question that was asked in an interview. Like I think IIM के कोझिकोडे के इंटरव्यू मुझसे पूछा था, like why 0 factorial is 1. First they have asked like what is the value of 0 factorial. Then they asked why this is 0 factorial. So that I will explain in the PNC part. Fine. Now let's come to the second thing that we're gonna cover. So this was the basic, like what is the factorial and what it signifies, what it means, how it's represented, and the few values that you need to remember. Let's come to the like type of the question that can be asked from this topic. First, how like this is the question regarding highest power of a prime number in a factorial. So basically, like we're gonna write a prime factorization from a like of a factorial number. So let's take a smaller number. Let's take 5 factorial. Let's take 5 factorial. So what 5 factorial means? 5 factorial is multiplication of first 5 natural numbers. 5 factorial is multiplication of first 5 natural numbers. Okay. And this value you can write
2 टू द पावर, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कितना है 2 है, तो दैट इज 3 and 3 into 5. So this is the, you can say, prime factorization form of a 5 factorial. So any number that you will be writing that like this is the multiplication of first and natural numbers, so this will have prime factors, so prime factor will have some powers, so that basically we need to find. So like question might be asking, find the number of 2's in 5 factorial. Number of 2's in 5 factorial, so there are 3 2's in the 5 factorial. I hope you understand this thing. There are 3 2's in the 5 factorial. Suppose the question asks in the like find the number of 3's in, let's say, 7 factorial. Find the number of 3's in the 7 factorial. 7 factorial को जब ओपन करोगे या उसका प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म लिखोगे तो उसमें जो 3 होगा उसकी हाईएस्ट पावर कितनी आएगी, दिस इज द क्वेश्चन. सो व्हाट यू विल डू, लाइक 1 2 3 4 5 6 7, फर्स्ट टाइम एक्सप्लेनिंग, देन विल कम टू लाइक कि कैसे सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पर 2 का पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, सो दिस इज 4 एंड 3 2 है, 5 7. So how many 3's are there in the 7 factorial? 2 3's are in the 7 factorial. Clear? Okay, now let's come to one important thing. I will explain how to find this thing. Now you might be asking, like suppose it is asking 120 factorial. Find the number of 2's in the 120 factorial. So it's not possible to do like this. It's not possible to like 1 2 3 है ना, ऐसे नहीं कर सकते. So there is a way that I will explain. But before coming to that like method, let me just explain a concept also. So you see, like when we are writing 5 factorial, so like 1 2 3 4 5. So how many prime numbers are involved? 2 3 5. 3 prime numbers are involved in the 5 factorial. Here you can see 2 has the power of 3, 3 has 1, 5 has 1. Now suppose you write let's say 7 factorial. So 7 factorial will have 2 3 4 5 6 7. So it will have 2 to the power 4 है ना, 2 to the power 4, 3 to the power 2, 5 7 to the power 1. Clear? So here I want to conclude one thing. यहाँ पर तुम देख सकते हो these are the prime numbers 2 3 5 7. So किसी भी प्राइम नंबर में in any factorial number, the power of smaller prime number will be always higher as compared to lower prime number. बात समझ में? देखो मैं क्या कह रहा हूं, अब मैं इसको लाइक एक जनरलाइज फॉर्म में लिखता हूं. पहले अच्छा एक बार मैं फिर से इसको एक्सप्लेन करता हूं. यहां पर भी देखो 2 की पावर हमेशा 3 से ज्यादा होगी, 3 की पावर बराबर हो सकती है, नहीं तो ज्यादा होगी, है ना. अब जो लाइक ये जो छोटा वाला प्राइम नंबर है ना, इसकी पावर बराबर होगी या फिर ज्यादा होगी. देखो यहाँ पर 2 की पावर ज्यादा है, यहाँ पर 3 की पावर ज्यादा है, इससे यहाँ पर इसकी पावर बराबर है. सो लेट मी जस्ट जनरलाइज दिस थिंग. n फैक्टोरियल का जब भी तुम लाइक उसको, n फैक्टोरियल एक नंबर है ना, n फैक्टोरियल इज अ नंबर दैट इज अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स. तो जब इस नंबर का तुम प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म लिखोगे, सपोज n फैक्टोरियल को तुमने ओपन किया तो एक x नंबर मिलता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, और फिर तुम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म लिखते हो, वो तुम्हें पता है कैसे लिखते हैं. सो प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म इज लाइक p1 टू द पावर n1, p2 टू द पावर n2, p3 टू द पावर n3 एंड सो ऑन. ठीक है. नाउ व्हाट आई एम टेलिंग, these powers, so and also these prime numbers are like in the p1 p2 p3. ये प्राइम नंबर तुम्हारे इस ऑर्डर में है. ठीक है, ये जो प्राइम नंबर है तुम्हारे इस ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, लाइक 2 से स्टार्ट होगा, 3 5 ऐसे आएंगे. नाउ जो n1 n2 है, n1 n2 n3 सोन, इसमें क्या रिलेशन होगा, दिस विल बी द रिलेशन. फाइन, नोट डाउन दिस थिंग. मैंने लाइक तुम्हें एग्जाम्पल से समझा दिया है, नोट डाउन दिस थिंग. ये जनरलाइज फॉर्म में लिख सकते हो कि किसी भी फैक्टोरियल का जब तुम लाइक उस नंबर को मल्टीप्लाई करके एक नंबर लिखोगे ना, फैक्टोरियल, अगर ये फैक्टोरियल हटाओगे यहाँ से तो ये नंबर आएगा. फैक्टोरियल हटाओगे जब सारे मल्टीप्लिकेशन लिखोगे, देन यूल गेट अ नंबर. उस नंबर का जब तुम प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म लिखोगे, उस प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में जो तुम्हारा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होगा, उसकी पावर ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू होगी
जो उससे लाइक बड़ा प्राइम नंबर है, ठीक है। फाइन, आई होप यू गॉट दिस पॉइंट, तो नोट डाउन दिस थिंग। ओके, नाउ कम टू द दिस पार्ट। तो ये बेस पहले देखो मैंने तुम्हें समझाया कि कैसे लाइक कि ये इस क्वेश्चन का मतलब क्या है ना, कि हमें क्या फाइंड करना है। फिर मैंने तुम्हें समझाया कि रिलेशन क्या है पावर्स में। अब आते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। हाउ टू सॉल्व फॉर बिगर नंबर, हाउ टू सॉल्व लाइक सपोज दिया है 120 फैक्टोरियल। फाइंड द लाइक जब इसको ओपन करोगे है ना, जब इसको ओपन करोगे 1 इंटू 2 इंटू 3 ऐसे करके 120 तक मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसमें 2 की पावर कुछ आएगी, 3 की पावर कुछ आएगी, है ना, और लाइक 5 की पावर कुछ आएगी, प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म लिखोगे, 7 की पावर कुछ आएगी, 9 10 11 की पावर कुछ आएगी, एंड जितने इसमें प्राइम नंबर्स होंगे सबकी कुछ ना कुछ पावर आएगी। अब तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द दिस वन, फाइंड द हाईएस्ट पावर ऑफ 2 इन द 120 फैक्टोरियल, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर है। सो अब देखो इसका मेथड क्या है। व्हाट वी विल डू, 120 जो भी प्राइम नंबर पूछ रहा है, जो भी प्राइम नंबर पूछ रहा है उससे 2 से पूछ रहा है, तो 2 से तुम्हें इसको डिवाइड करना है, एंड यू डोंट नीड टू वरी अबाउट रिमाइंडर। जस्ट तुम्हें क्वेश्चन ही बोलते हैं ना इसको, लाइक जो डिवीजन होता है, लाइक इसको क्वेश्चन बोलते हैं। अगर बोलते हैं ठीक है, अगर नहीं बोलते हैं तो जो भी बोलते हैं ठीक है, ठीक है। बट समझ गए ना मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो दिस इज द थिंग, एंड देन इसको फिर यहाँ पर ले आओगे 60 2 30, फिर 30 को 2 से अगेन 15। अब यहाँ पर देखो रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं, जस्ट इस पे फोकस करो। 7 2 जा 14 होता है, ठीक है। रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं है। 2 3 जा 2 1 जा, so add all these numbers 7 3 2 11 26 56 56, so 6 116। सो 120 फैक्टोरियल में n1 की जो वैल्यू यहां पर होगी डेट विल बी 116। आई होप समझ में आया। आई विल गिव अनदर एग्जांपल। सपोज तुम्हें लाइक लेट्स टेक अ स्मॉलर नंबर, है ना, ताकि तुम्हें वो दिख भी जाए। लेट्स टेक अ 15 फैक्टोरियल। 15 फैक्टोरियल, फाइंड द लेट्स से लाइक हाईएस्ट पावर ऑफ 5। 5 की हाईएस्ट पावर फाइंड करते हैं 15 फैक्टोरियल में। सो 15 5 3 3 आ जाएगा। अब देखो इसको अगर इसको ओपन करोगे तुम 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे कर कर करके लिखोगे ना, तो एक 5 यहाँ पर आएगा, दूसरा 5 10 पर आएगा, और तीसरा 5 15 पर आएगा। तो 3 5 होंगे ना इसमें। दीज आर द ओनली 5, so that is the 3. So let's take let's try to find, let's take any big number, 256 factorial. Find the हाईएस्ट पावर ऑफ 7। सपोज इसमें मुझे फाइंड करना है कि जब मैं इसको नंबर को ओपन करके लिखूंगा, ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म लिखूंगा, तो इसमें 7 की ये पावर क्या होगी, तुम्हें ये बताना है। दिस इज द क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ डी, है ना। जब फैक्टोरियल हटाओगे ना तो सारा मल्टीप्लीकेशन लिखा जाएगा, तो इसमें 7 की पावर क्या होगी। एंड यू ऑलवेज रिमेंबर रिलेशन क्या होगा, ये रिलेशन है ना, रिलेशन एबीसीडी में ये होगा। लाइक और भी प्राइम नंबर्स आएंगे, बट मैंने सिर्फ 7 तक लिखा। और भी प्राइम नंबर्स आएंगे तो उनमें रिलेशन ये रहेगा ऑलवेज, सबसे बढ़िया हमेशा ये वाला पावर होगा, ठीक है। ओके, और ये तुम अपने आप खुद से और चेक कर लेना, और भी नंबर्स लेके चेक करना क्या ऐसा हमेशा हो रहा है ना। ये मैंने तुम्हें बता दिया होता है, बट अगर तुम्हें खुद से एक्सरसाइज करोगे ना, जैसा मैं हमेशा कहता रहता हूँ, कैट इज नॉट एग्जाम की मैंने तुम्हें बता दिया तुमने वो रट लिया। तुम खुद से चेक करो, वेरीफाई करो, तब चीजें तुम्हें समझ में आएंगी। देन यू विल बी एबल टू लर्न इन अ बेटर वे एज कंपेयर टू मैंने तुम्हें बता दिया कि ऐसा होता है और तुमने रट लिया, है ना। तो खुद से जाके एक्सपेरिमेंट करो, खुद से रैंडम नंबर लेके चेक करो। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, आई एम जस्ट टेकिंग रैंडम नंबर्स और तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो तुम्हें भी वही प्रोसेस करना है। मैं 256 लेके कर रहा हूँ, तुम कोई और नंबर लेके करना। जब एक क्लास देखना तुम, तो 256 नंबर मैं ले रहा हूँ, मैंने इंप्लीमेंट किया, तो उसके बाद वीडियो पॉज करना, तुम कोई और रैंडम नंबर लेके चेक करना। सेम थिंग, दिस विल बी द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग, ठीक है। चलो एनीवे लेट्स कम बैक टू दिस। हमें 7 की पावर निकालनी है 256 में कितनी होगी। सो व्हाट यू विल डू, डिवाइड बाय 7। 7 3 21 एंड 7 6 42। 7 5, अब 5 तो 7 से डिवाइड होगा नहीं, है ना। 36 5 41, हाईएस्ट पावर विल बी 41। आई होप नाउ यू गैस हैव गॉट दिस थिंग कि किसी फैक्टोरियल में हाईएस्ट पावर प्राइम नंबर की कैसे निकालोगे।
ठीक है, तो अब प्राइम नंबर तो आ गया। अब बात करते हैं कंपोजिट नंबर, है ना, कंपोजिट नंबर की। अच्छा तुम्हें याद होगा मैंने बताया था कंपोजिट नंबर पर लाइक प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर, है ना, प्रॉपर और इम्प्रॉपर। ऐसा कुछ होता नहीं है, देर इज नो सच टर्म प्रॉपर इम्प्रॉपर कंपोजिट नंबर, जस्ट आई हैव मेड अप फॉर आवर कन्वीनियंट। ठीक है, तो प्रॉपर कौन से होते थे, लाइक 6, 12, ये सब प्रॉपर है। इम्प्रॉपर क्या होते थे, 4, 8, 9, 27, है ना। तो ये वाले डिस्कस करते हैं। सपोज 4, 8, पहले इम्प्रॉपर वाले को डिस्कस करते हैं, फिर प्रॉपर वाले को डिस्कस करते हैं। ठीक है, सो लेट्स डिस्कस लाइक सपोज अब क्वेश्चन है तुम्हारा अगेन 12 फैक्टोरियल, छोटे नंबर लेते ताकि तुम्हें समझ में आए। 12 फैक्टोरियल, अब तुम्हें 12 फैक्टोरियल में बताना है फाइंड द हाइएस्ट पावर ऑफ 4, फाइंड द हाइएस्ट पावर ऑफ 4। लाइक अगर 12 फैक्टोरियल को तुम ओपन करके लिखोगे वन, लाइक लेट्स से 12 फैक्टोरियल की वैल्यू हम क्या निकाल सकते हैं, लाइक लेट्स से एक्स नंबर आएगा। ठीक है, लेट्स से एक्स नंबर आएगा, तो इस एक्स नंबर को अगर प्राइम फैक्टराइज करोगे तो 4 की पावर कितनी आएगी, दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, तो तुम्हें करना क्या है, अब कई बार हम ये गलती कर देते हैं एग्जाम में जल्दी जल्दी में कि हम क्या करते हैं, 4 की पावर पूछा है ना, तो हमारी हैबिट होती है 2 की पावर करना, 3 की पावर निकालना, तो हम 4 की पावर ऐसे निकालते हैं। दिस इज नॉट राइट, है ना, ये नहीं है। रूल इज फॉर प्राइम नंबर ओनली, दिस रूल जो मैंने अभी बताया तुम्हें ऐसे डिवाइड करने वाला, दैट इज ओनली फॉर प्राइम नंबर्स। सो व्हाट यू विल डू, व्हाट यू विल डू, लाइक वी गोना डू 2। 4 कैसे बनता है, 4 मेड अप ऑफ 2 2s, तो मैं एक 4 के लिए 2 2s चाहिए होंगे, यू नीड 2 2s फॉर 1 4, है ना। तो यहां से पहले 6 6 3 एंड 1, सो यू हैव टोटल 10 2s, यू हैव टोटल 10 2s। 2 2 से तुम्हारा एक 4 बनता है ना, 2 2 से तुम्हारा एक 4 बनता है, तो 10 2 से 10 2 से तुम्हारे कितने ये बनेंगे, 5 4s बनेंगे, तो 4 की पावर 5 होगी। समझ में आ गया, समझ में आ गया। ठीक है, सो दिस वाज फॉर ठीक है, दिस वाज फॉर इम्प्रॉपर कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। अब सपोज 9 निकालना हो, 9 के लिए भी सेम रूल है, 9 निकालना है। 9 की पावर इसमें कितनी, 9 की कौन सी हाईएस्ट पावर इसको डिवाइड कर देगी, दिस कैन बी ऑल्सो आस्क्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड लाइक दिस, व्हाट इज द हाई, लाइक सपोज क्वेश्चन दे दिया तुम्हें, ठीक है, ये ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि इसको डिवाइड करके रिमाइंडर 0 आ रहा है, दिस रिप्रेजेंट, लाइक सपोज दिस इज द, कि लाइक 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन है रिमाइंडर का। ओके, तो अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, अब ऐसे क्वेश्चन दे दिया तुम्हें कि लाइक 12 फैक्टोरियल है, इसको 9 टू द पावर n से डिवाइड किया जाता है और रिमाइंडर 0 आता है। दिस इज द क्वेश्चन, 12 फैक्टोरियल इज डिवाइडेड बाय 9 टू द पावर n एंड रिमाइंडर इज 0, फाइंड द हाइएस्ट वैल्यू ऑफ n, फाइंड द हाइएस्ट वैल्यू ऑफ n, एक क्वेश्चन पूछा है तुमसे। क्वेश्चन फिर से नोट डाउन कर लो, 12 फैक्टोरियल इज डिवाइडेड बाय 9 टू द पावर n एंड रिमाइंडर इज 0, रिमाइंडर इज 0, फाइंड हाइएस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ n, फाइंड हाइएस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ n, पॉसिबल वैल्यू ऑफ n, ये क्वेश्चन है तुम्हारा। तो क्या करोगे, अगेन ये इम्प्रॉपर कंपोजिट नंबर है ना, इम्प्रॉपर कंपोजिट नंबर है। अब लाइक एक 9 बनाने के लिए तुम्हें 2 3 चाहिए होते हैं ना, 2 3 गिव यू 1 9। अब मैंने बताया ये जो रूल है डिवीजन वाला, ये सिर्फ प्राइम नंबर के लिए वर्क करता है। तो प्राइम नंबर क्या है तुम्हारा 3, 3 के लिए निकालेंगे, है ना, तो 3 के लिए हम कर सकते हैं, 9 के लिए नहीं कर सकते, 9 डिवाइडेड बाय 12 नहीं कर सकते, 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 9 नहीं कर सकते। ठीक है, 4 आएगा एंड 4 ये 1 आएगा, रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं है। तो कितने 3s आ गए इसमें, 5 3s। तो हमारे पास अगर 5 3s हैं तो कितने 9 बनेंगे, कितने 9 बनेंगे, हमारे पास अगर 5 3s हैं तो कितने 9 बना सकते हो मैक्सिमम, मैक्सिमम तुम 2 9 बना सकते हो, है ना, मैक्सिमम 2 9 बना सकते हो, बिकॉज एक 3 अकेला पड़ जाएगा तो वो उससे तो 9 बनेगा नहीं। तो ये 4 है ना,
तो लाइक 4 3 से तुम्हारे 2 9 बनेंगे, तो आंसर विल बी n इक्वल टू 2। हाइएस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ n विल बी 2। आई होप तुम्हें, अब मैं फिर से समराइज करता हूँ मैंने क्या क्या एक्सप्लेन किया। मैंने एक्सप्लेन किया तुम्हें स्टार्टिंग में कि लाइक जो पावर होती है ना, लाइक कि जैसे कोई फैक्टोरियल नंबर है n फैक्टोरियल, तो इसका जब वो पे मल्टीप्लाई कर दोगे पूरा एक नंबर मिलेगा, फिर उसको प्राइम फैक्टराइज करोगे। प्राइम फैक्टराइजेशन में जो लाइक लाइक ऐसे सारे ये ऑर्डर में अगर लिखोगे प्राइम नंबर्स को, तो जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होगा उसकी पावर हमेशा ज़्यादा होगी लाइक नेक्स्ट प्राइम नंबर से अपने, उससे ज़्यादा या फिर इक्वल टू होगी। ठीक है, ये रिलेशन बताया मैंने पहले तुम्हें। फिर मैंने तुम्हें बताया कि एक पर्टिकुलर नंबर में कैसे फाइंड करोगे, कि लाइक सपोज 8 फैक्टोरियल में कितने टूज हैं, ये कैसे फाइंड करोगे। आई टोल्ड यू दिस वे। देन आई टोल्ड यू कि लाइक इम्प्रॉपर कंपोजिट नंबर, जो हमारा टर्म है, जो हम लोग यूज करते हैं, है ना, बुक में नहीं है ऐसा इम्प्रॉपर कंपोजिट नंबर, देयर इज नो सच थिंग। मैंने क्लासिफिकेशन में एक्सप्लेन कराया, तो वो क्लास देखना। तो इम्प्रॉपर कंपोजिट नंबर्स का कैसे करें, 4 9 इन लोगों, इनका कैसे कैलकुलेट करें, है ना, इनकी पावर कैसे निकालें। नाउ लेट्स डू द क्वेश्चन रिगार्डिंग ऑफ लाइक प्रॉपर कंपोजिट नंबर, है ना। प्रॉपर कंपोजिट नंबर लाइक 6 12 18, इन सबको कैसे कैलकुलेट करें। तो लेट्स डू फॉर 6, है ना, 6 के लिए करते हैं, 6 के लिए करते हैं। तो लेट्स टेक अगेन 24 फैक्टोरियल। 24 फैक्टोरियल में अगेन सेम क्वेश्चन कि लाइक 24 फैक्टोरियल इज डिवाइडेड बाय 6 to the power n and remainder is 0, find the highest value, find the highest possible value of n, highest possible value of n। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है, हैंड राइटिंग नहीं मैं बोल रहा हूं, उस पर फोकस करो। 24 फैक्टोरियल इज डिवाइडेड बाय 6 to the power n and the remainder is 0, find the highest possible value of n, this is the question। तो अब देखो क्या करना है तुम्हें। 24 फैक्टोरियल है, 6 to the power n से डिवाइड होता है और रिमाइंडर 0 आता है, तो 6 कैसे बनता है तुम्हारा। अब ऐसे मत करने लगना 6 4 जा 24, है ना, ये मैंने बताया गलत है। प्राइम नंबर पे जस्ट प्राइम नंबर से कर सकते हो, रूल इज एप्लीकेबल ओनली फॉर प्राइम नंबर्स। सो व्हाट इज मेड ऑफ 6? 6 इज मेड ऑफ 2 and 3, 1 2 and 1 3 gives you a 6, 1 2 and 1 3 gives you a 6। So what you gonna do, you gonna find, and one more thing, is 6 gonna depend on 2 or 3। अब कोई भी नंबर है लाइक एनी फैक्टोरियल इफ यू राइट, अब मुझे बताओ लाइक अगर सपोज a है 3 to the power b है, विच गोना बी हैज द हाइएस्ट वैल्यू, दिस विल बी एप्लीकेबल ना, दिस विल बी एप्लीकेबल। जस्ट लेट मी नो, अभी मैंने एक्सप्लेन किया था ये कॉन्सेप्ट। अगर कोई भी नंबर लाइक 24 का जब प्राइम फैक्टोरेशन फॉर्म लिखोगे, है ना, व्हेन यू विल राइट द प्राइम फैक्टोरेशन फॉर्म, सो यू गेट 3b एंड लाइक 5c ऐसे करके कुछ आएगा। सो a ग्रेटर देन इक्वल टू b होगा या नहीं होगा, होगा, है ना। सो अगर a ग्रेटर देन इक्वल टू b होगा, तो एक बात को जरा समझो कि लाइक नंबर ऑफ टूज तो हमारे पास इनफ होंगे, है ना। अब सपोज एक चीज और समझो, सपोज तुम्हारे पास 10 टू है और 3 ओनली 7 है, तो 6 कितने बना पाओगे, कितने 6 बना पाओगे, 7 ही बना पाओगे ना, 7 ही बना पाओगे। तो नंबर ऑफ 6 विल डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ 3 आर नॉट, नंबर ऑफ 6 विल डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ 3 आर नॉट। 3 पे डिपेंड कर जाएगा बिकॉज 3 लिमिटेड होंगे, बिकॉज 2 तो बहुत सारे होंगे, 2 विल बी ऑलवेज मोर देन 3, नंबर ऑफ 2 विल बी ऑलवेज मोर देन 3। तो जो चीज कम होगी उस पर डिपेंड करेगा, 3 पे डिपेंड करेगा। ये समझ में आया, ठीक है। हम क्या करते हैं लाइक इस चीज एग्जाम में जब होता है ना, तो हम फालतू के हम क्या करते हैं 2 और 3 दोनों निकालने लगते हैं, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, है ना, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। द वैल्यू विल बी like number of 6 will depend on 3 only, number of 6 will depend on 3 only, because there will be limited, like number of 3s will be always less than the number of 2s, fine। तो इसमें कैसे सॉल्व करोगे, you don't need to calculate for 2, you don't need to look for 2, ठीक है, जस्ट 3 से देखो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 24 3 8 आ गया, 3 2 आ गया, तो 10, तो देयर विल बी 3 तुम्हारे कितने हैं 10, सो नंबर ऑफ 6 विल बी ऑल्सो 10। अब वेरीफाई करना है तो देख लो,
2 से मैं तुम्हें करके दिखा देता हूँ। 2 12, 2 6, 2 3, 2 1। तो हमारे पास ये है 22, हमारे पास 2 है 22 और 3 है सिर्फ 10। तो 6 कितने बनेंगे? 6 खाली 10 ही तो बना पाओगे ना, बाकी के 2 तो ऐसे ही रह जाएंगे। सो दैट्स वाई 3 इज अ लिमिटिंग नंबर। वो मैं इसीलिए एक्सप्लेन कर रहा था कि लाइक a ग्रेटर देन इक्वल टू b, वो जो मैंने स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो हमेशा जो हाईएस्ट पावर है वो लिमिटिंग होगी। अब सपोज तुमसे पूछता है कि इसमें 30 कितने होंगे, 30 टू द पावर, ये क्वेश्चन दे दे 30, है ना। ये मैं सेम क्वेश्चन है जो तुमने लिखा उसमें जस्ट 6 टू द पावर n की जगह 30 टू द पावर n कर लो, ठीक है। सेम क्वेश्चन है 6 टू द पावर n की जगह 30 टू द पावर n कर लो। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? 30 to the power n. 30 can be made up of 2, 3, 5. Now limiting factor will be 5 only. So answer will be 5, 4. 4 is the answer. You don't need to check for 2 and 3. I hope ये बात समझ में आ गई। But now let's see the third way, like एक और वेरिएशन देखते हैं, एक और चीज हो सकती है इसमें। अब एग्जाम्पल के लिए लेते हैं 12। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं 12। 12 is 2 to the power 2 into 3। अब तुम्हें टूज चेक करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये बात जो मैंने बताई, अब ये नोट डाउन कर लो। ये नोट डाउन कर लो कि अगर कोई भी कंपोजिट नंबर दिया हुआ है, ठीक है, अगर तुम्हारा लाइक प्रॉपर कंपोजिट नंबर दिया हुआ है जिसमें लाइक एक से ज्यादा प्राइम फैक्टर्स हैं, प्रॉपर कंपोजिट नंबर, इसीलिए मैंने बोलता प्रॉपर और इम्प्रॉपर फर्क याद रखना, ठीक है। देखो यहाँ पर मैं बार बार वो यूज कर रहा हूँ टर्म, तुम्हें नहीं पता है तो तुम्हें क्लासिफिकेशन ऑफ वाली क्लास देखनी पड़ेगी। तो जो प्रॉपर कंपोजिट नंबर हैं, अगर अगर उनके प्राइम फैक्टराइजेशन में, उनका जब प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म लिखोगे, लाइक 30 का सपोज पूछा था, अगर उनका प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म नंबर का लिख रहे हो और उनकी पावर सेम है, उनकी पावर सेम है, देन यू कैन जस्ट चेक, जस्ट तुम जो हाईएस्ट प्राइम नंबर है जस्ट वो चेक कर लो, ठीक है। अगर पावर सेम नहीं है, अगर पावर ऐसे है या फिर पावर तुम्हारी, एक मिनट, अगर तुम्हारी पावर ऐसे है, अगर पावर तुम्हारी सेम है, जैसे 30 है, जैसे 6 है ना, 30 और 6 दोनों में लिमिटिंग 3 और 5 होगा हाईएस्ट प्राइम नंबर, क्योंकि दोनों की पावर सेम है। पावर सेम हो या फिर पावर तुम्हारी इसकी बड़ी हो, ठीक है, तो लाइक इसको, ठीक है, समझ गए। पावर या फिर देखो जो प्राइम नंबर है सबकी पावर इक्वल हो, या फिर जो बड़ा प्राइम नंबर हो, लाइक अगर सपोज ए और बी है तो ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, ये चीज अगर वैल्यू हो, देन यू जस्ट नीड टू चेक द हाईएस्ट प्राइम नंबर, ठीक है। तो मैं एक बार समराइज कर देता हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है। देखो मैं क्या बता रहा था कि जैसे कोई नंबर है 30 फैक्टोरियल लेट से, ठीक है, इसमें तुम्हें चेक करना है कि लाइक 30 की जगह कुछ और लेते हैं, 120 लेते हैं, 120 फैक्टोरियल। नाउ यू नीड टू फाइंड, अगर इसको 30 टू द पावर n से डिवाइड करोगे, है ना, और रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो n की हाईएस्ट पावर क्या होगी? 30 को लिख सकते हैं 2, 3, 5, है ना, बिकॉज 30 का रूल तो हमें पता नहीं, हमें रूल पता है प्राइम फैक्टर्स के लिए, तो प्राइम फैक्टर है 2, 3, 5। नाउ यू डोंट नीड टू चेक फॉर कितने 2s हैं कितने 3s हैं, वो सफिशियंट होंगे, जस्ट लिमिटिंग फैक्टर विल बी 5। दिस इज कॉल्ड द लिमिटिंग फैक्टर, बुक में मिलेगा तुम्हें लिमिटिंग प्राइम नंबर। तो 5 लिमिटिंग प्राइम नंबर है, जस्ट 5 की वैल्यू निकाल लो, तो 5 की वैल्यू यहां पर कितनी आ जाएगी? 28। सो देयर विल बी 28 30s। 2 और 3 इनफ होंगे, 3 विल बी ऑलवेज मोर देन 28, 2 विल बी ऑलवेज मोर देन 28। तो 30 कितने होंगे तुम्हारे? 28। तो n की वैल्यू हो जाएगी 28। ये बात समझ में आ गई। तो अब मैं बोल रहा हूं तुम्हें, जो स्टार्टिंग में ए बी बताया ना मैंने, स्टार्टिंग में पावर, वो मैंने इसके लिए बताई थी, अब मैं पावर इसके लिए बता रहा हूं तुम्हें। अब देखो, अब कोई भी नंबर है जिससे डिवाइड कर रहे हो, लेट से x, और इसका हाईएस्ट पावर n की वैल्यू निकाल, 120 फैक्टोरियल इज डिवाइडेड बाय लेट से x टू द पावर n, you need to find the high, like such that remainder is 0, such that remainder is 0, such that remainder is 0. Find the
मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एन, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एन, ठीक है, मैक्सिमम। तो ये चीज है, ये क्वेश्चन है। अब यहां पर तुम्हारा एक्स, अब तुम्हें करना क्या है, एक्स एक कंपोजिट नंबर हो सकता है, एक्स एक प्राइम नंबर हो सकता है। अगर प्राइम नंबर है, लाइक अगर एक्स की वैल्यू 2 है, 3 है, 5 है, तो रूल तुम्हें डायरेक्ट पता है ना, 2 से कैसे चेक करोगे, 3 से कितने 2s हैं कितने 3s हैं निकाल लोगे, इनकी वैल्यू आ जाएगी। बट अगर एक कंपोजिट नंबर है, जैसे 6 है, 12 है, 30 है ना, एक कंपोजिट नंबर है। अब कंपोजिट नंबर देखो, जैसे मैं तुम्हें बताया था दो टाइप के होते हैं। अगर कंपोजिट नंबर तुम्हारा 4 है, लाइक इम्प्रॉपर कंपोजिट नंबर है, 4 है, 9 है, 27 है, तो क्या करोगे, तो बेसिकली सिर्फ 2 है ना, सिर्फ 3 है, सिर्फ 3, कितने 3 है उसको निकाल के फिर उसके पावर एडजस्ट कर देनी है, 3 से डिवाइड कर देना है पावर को, 2 से डिवाइड कर देना है और इंटीजर पार्ट ले लेना है। ये बात होगी। फिर अगर प्रॉपर कंपोजिट नंबर है, प्रॉपर कंपोजिट नंबर लाइक एक्स टू द, लाइक प्रॉपर कंपोजिट नंबर 6 है, 12 है ना, ये सब है, तब क्या करोगे उसके लिए देखते हैं। तो अब कोई भी अगर नंबर है तो क्या करोगे, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि हमें रूल तो प्राइम नंबर्स के लिए पता है। केयरफुली मैं इसके प्राइम फैक्टराइजेशन की बात कर रहा हूं, पहले मैं इसके प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म की बात कर रहा था, ठीक है। तो क्या करोगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म लिखोगे, पी टू द पावर ए, पी टू द पावर लाइक बी, पी टू द पावर 3c, ऐसे करके कुछ आ जाएगा, ऐसे करके कुछ आएगा ना। अब ये कुछ भी कंपोजिट नंबर कुछ भी हो सकता है। तो अगर तुम्हारी पावर, अगर तुम्हारी पावर ऐसे है, अगर तुम्हारी ए बी सी डी की वैल्यूज ऐसे हैं, अगर ए बी सी डी की वैल्यूज अब देखो इक्वल है ना, या फिर बड़ी हैं, तो यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग। जो सबसे बड़ा प्राइम नंबर होगा, सपोज अगर सिर्फ इतना ही प्राइम नंबर, जो सबसे बड़ा प्राइम नंबर होगा, लेट से पी एन, पी एन टू द पावर लेट से जेड, कुछ भी, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा जेड। तो इसमें क्या करोगे, जो पी एन है, नाउ पी एन विल बी योर लिमिटिंग प्राइम नंबर, लिमिटिंग प्राइम नंबर, लिमिटिंग प्राइम नंबर, ठीक है। तो इसमें सिर्फ पी एन फाइंड कर लोगे, इसमें पी एन कितने हैं, पी एन वाला प्राइम नंबर, लेट से पी एन प्राइम नंबर है, लेट से तुम्हारा 101, 101 प्राइम होता है, अगर होता है तो ठीक है, ठीक है। तो अगर 101 है तो सिर्फ 101 देखोगे इसमें कितने हैं, उतने ही तुम्हारे एक्स हो सकते हैं। आई होप ये तुम्हें कॉम्प्लेक्स ना लगा हो, मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया तुम्हें, सिंपल सी चीज़ है अगर समझो। आई जस्ट एक्सप्लेन टू लाइक एक्सटेंट कि तुम्हें एग्जाम में ज़्यादा प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े, ठीक है। वैसे चीज़ तो बहुत आसान है, मैं थोड़ा ज़्यादा डीपर में तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया कि ये सारी चीज़ें देखो, ताकि तुम्हें कैलकुलेशंस कम करने पड़े, ठीक है। अदरवाइज तुम देखोगे तो सिंपल सी चीज़ है कि लाइक कैसे प्राइम नंबर निकालोगे, फिर तुम अपने आप देखो कैसे निकालोगे, बट मैं तुम्हें एक स्टेप एक्स्ट्रा जाके एक्सप्लेन किया ताकि तुम अननेसेसरी कैलकुलेशन ना करो, ठीक है। तो अब देखो, एक दो और एग्जांपल करते हैं। 120 फैक्टोरियल में 12 निकालना है, 120 फैक्टोरियल में सेम क्वेश्चन है, डिवाइडेड बाय 12 टू द पावर n एंड रिमाइंडर इज 0, देन फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ n। अब 12 कैसे बनता है, 2 टू द पावर 2 इंटू 3। यहां पर देखो मैंने क्या बताया था कि पावर ऐसे होनी चाहिए, बट यहां पर पावर ऐसे है ना, ऐसे है। तो यहां पर तुम सिर्फ 3 नहीं चेक कर सकते, यू हैव टू चेक 2 एंड 3 बोथ, यू हैव टू चेक फॉर 2 ऑल्सो। जस्ट मैं ये बताना चाह रहा हूँ, दिस इज द फाइनल थिंग दैट आई वॉन्ट टू से। अगर ये चीज फॉलो कर रही है, ये जो तुम्हारा नंबर है ना जिससे चेक कर रहे हो, अगर ये वाली चीज फॉलो कर रही है ना, अगर 12 टू द पावर एन तुम्हारा, 12 टू द पावर एन जो भी एक्स टू द पावर एन होगा, अगर ये चीज फॉलो कर रहा है कि लाइक जो बड़ा प्राइम नंबर है उसकी पावर ज्यादा या बराबर है, देन यू डोंट नीड टू वरी अबाउट, जस्ट चेक द हाईएस्ट प्राइम नंबर कितना है, दैट विल बी योर आंसर, दैट विल बी योर लिमिटिंग प्राइम नंबर, बेसिकली उससे आंसर आ जाएगा। बट अगर रिवर्स केस है, इस वाले की जगह ये केस है, तो तुम्हें सारे चेक करने पड़ेंगे, ठीक है। आई होप दिस इज द समरी, यू गॉट इट। ये चीज तुम्हें सारी चेक करनी पड़ेंगी, तो यहां पर हमें 2s भी चेक करने पड़ेंगे, 3s भी चेक करेंगे, तो इसको देखते हैं। तो 120 टू कितने, 60, 60, 30, 30, 15, 7, 3, तो कितने आ गए, 90, 100, 116 आ गए। 2 तुम्हारे हैं इसमें, 116, 3 कितने देखते हो, 3 कितने, तो 40 एंड आई थिंक
40, 13, 4 and 1, 5, 58 टू द पावर 58। तो इसके लिए अब तुम्हें कितने, अब हमें टूज तो चाहिए नहीं, हमें 2 टू द पावर 2 चाहिए, तो 2 टू द पावर 2 अंदर कर दो, और इसका हाफ 58 ही होता है ना, 58 ही है, तो एग्जैक्ट तुम्हें 58 मिल जाएंगे। अब यहाँ पर बाई चांस, अब ये मत बोलना कि लाइक हाईएस्ट पावर का है, ये बाई चांस है, ठीक है, दिस द बाई चांस की 3 पर ही जितना 3 है उतने ही तुम्हें लाइक 4 मिल गए, ठीक है, दिस इज बाई चांस। ओके, नाउ लेट्स कम टू द फ्यू क्वेश्चंस। तो लाइक जैसे ये क्वेश्चन है, फाइंड द हाईएस्ट पावर ऑफ 2 दैट कैन डिवाइड 14 फैक्टोरियल, इजी क्वेश्चन है। 14 फैक्टोरियल 2, 7, 3, 1, कितना आ गया 11 आंसर है। अगेन ये मैं सॉल्व कर रहा हूँ, बट तुम पॉज करके खुद से सॉल्व कर लो, देन सॉल्यूशन देखना। 6 निकालना है, 50, तो 6 कैसे बनता है 2 और 3 से, तो क्या हमें 2 चेक करना चाहिए? नहीं, बिकॉज दिस इज फॉलोइंग दिस रूल, ये रूल फॉलो कर रहे हैं, तो हमें सिर्फ 3 पे फोकस करना है। 3 कितने हैं? 22, so 22 will be the answer। 12 30 फैक्टोरियल, 12 30 फैक्टोरियल, 30 फैक्टोरियल, तो 12 कैसे बनता है 2 टू द पावर 2 इंटू 3, 30 फैक्टोरियल। अब देखो ये रूल ये वाला फॉलो नहीं कर रहा है, दिस इज नॉट फॉलोइंग दिस रूल, दिस पावर, दिस इज दिस थिंग, सो वी हैव टू चेक बोथ। तो हमें 2s भी चेक करने पड़ेंगे और तुम्हारे 3s भी चेक करने पड़ेंगे। अगर मैं कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक करूं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, आई विल पिन दैट कमेंट, ठीक है, सिंपल, उसका कोई लोड नहीं लेना है कि कैलकुलेशन गलत है, आंसर गलत आया, ठीक है। 2 कितना आया, 2 टू द पावर 25, 26 आया। 3 टू द पावर कितना आएगा 30, 10 एंड 3 एंड 3 1, दैट इज 14, दैट इज 14। अब देखो, अब तुम्हें चाहिए 2 टू द पावर 2, है ना, यहाँ पर 2s है, तब ये आंसर ऐसे 14 नहीं हो जाएगा, तो 2 टू द पावर 2s कितने हैं, दैट इज 13। अब देखो इसमें आंसर इस पर कर गया ना डिपेंड, तो कितने 13, तो एक 3 एक्स्ट्रा बच जाएगा, है ना, कितना आंसर हो जाएगा 13 तुम्हारा, बिकॉज तुम्हारे पास इतने 2 टू द पावर 2s नहीं है ना, 2 टू द पावर 2s कितने 13 ही है, और 3 तुम्हारे पास 14 है, तो लिमिटिंग फैक्टर इस बार हो गया 2 टू द पावर 2, लिमिटिंग फैक्टर इज 2 टू द पावर 2, दैट्स व्हाई आंसर विल बी 13, सिंपल। ओके, नेक्स्ट थिंग, नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ फैक्टोरियल, दैट इज ऑल्सो सेम थिंग, लाइक कुछ इसमें नया नहीं है, कुछ अलग नहीं है, जस्ट लाइक तुम बुक में एक अलग टॉपिक पाओगे, लोग तुम्हें अलग पढ़ाएंगे भी, तो दैट्स वाई ऑल्सो जस्ट टेकन कि लाइक तुम्हें जल्दी से बता देता हूँ क्या चीज़ होती है जो अभी तक हम करते हैं, दिस इज द सेम थिंग। मैं तुम्हें बताया कि जीरो कैसे बनता है, इन द फैक्टर आई हैव टोल्ड यू दैट जीरो इज फॉर्म्ड बाय द नंबर ऑफ 2s एंड 5, जितने 2 होंगे जितने 5 होंगे उतने ही जीरोज होंगे, है ना, जितने 2s होंगे जितने 5 होंगे उतने ही जीरोज होंगे। सो एंड ऑल्सो हियर यू कैन सी लाइक दोनों की पावर सेम है, या फिर दिस इज ऑल्सो फॉलोइंग अ रूल ऑफ दिस थिंग, ये रूल फॉलो कर रहा है। सो लिमिटिंग फैक्टर तुम्हारा 5 होगा, तो तुम्हें बुक में ऐसे बताया जाएगा, फिर तुम्हें कोई भी बताता है तो तुम्हें ऑलवेज ऐसे बताएगा, सपोज यू नीड टू फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड, तो लेट्स से नंबर है 136 फैक्टर, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड, क्वेश्चन है तुम्हें लाइक फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ 136 फैक्टोरियल, ये क्वेश्चन है तुम्हारा। तो इसका आंसर क्या होगा, लिमिटिंग फैक्टर हमारा क्या है 5 है, हमें चेक करना है 10, बेसिकली 10 कितने हैं इसमें, तो 10 कैसे चेक करोगे 2 और 5 से, 2 और 5 में 5 इज द लिमिटिंग, सो सिर्फ 5 से हमारा काम चल जाएगा, वी डोंट नीड टू वरी अबाउट 2s, 5 से निकाल लो नंबर ऑफ 5 2s are 10 एंड कितना 5 2s are 10 एंड 7 5 5 5 1, तो 28 5 33, सो 33, 5 टू द पावर 33, तो 5 इसमें 33 है, 2 तो अनलिमिटेड होंगे, मतलब नॉट अनलिमिटेड, 2 विल बी लाइक डेफिनेटली मोर देन 33, तो 2 की तो कमी नहीं है हमारे पास, सो दैट्स वाई देयर विल बी 33 जीरोज एट द एंड ऑफ 136, लाइक 136 को फैक्टोरियल को जब 1 से 36 तक मल्टीप्लाई करके नंबर लिखोगे तो एंड पे ये 33 जीरोज आएंगे,
ये 33 जीरोज आएंगे, उसके बाद एक कोई नॉन जीरो डिजिट आएगा, ठीक है। I hope now you'll be able to do how to find the number of zeros at the end of a factorial. So let's do a question. Suppose तुम्हें like let's 257 factorial. Find the number of zeros at the end. Like इसको जब मल्टीप्लाई करके लिखोगे इस नंबर को, ये जो नंबर आएगा, जो वैल्यू आएगी, उसके एंड पे कितने जीरोज होंगे, दिस इज द क्वेश्चन। सो यू नो 10, हमें बेसिकली 10 चेक करना है। तुम्हें लाइक ये चीज को एक्सप्लेन नहीं करता है, दे विल जस्ट से कि 5 से चेक कर लो, है ना। रीजन ये है 5 से चेक करने का, बिकॉज 5 इज अ लिमिटिंग प्राइम नंबर है। जस्ट 5 से डिवाइड कर लो, 2 5 7 5 5 एंड 1 5 10। अगेन कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो वो देख लेना तुम और मुझे बता देना। आई विल पिन दैट कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। 63 हो जाएगा, 63 इज द आंसर। सिंपल, कर लोगे अभी क्वेश्चंस। ओके, नाउ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। लाइक ये वाला पहले एक्सप्लेन करता हूँ मैं। इफ m एंड n आर टू इंटीजर्स देन m प्लस n फैक्टोरियल इज ऑलवेज डिविजिबल बाय m प्लस m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल। देखो इसमें क्या है, लेट मी जस्ट एक्सप्लेन दिस हियर। तो m प्लस n फैक्टोरियल अगर तुम्हारा ये दिया हुआ है, सो दिस विल बी ऑलवेज डिविजिबल बाय दीज टू नंबर। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक 18 फैक्टोरियल ले लेते हैं। तो अगर नीचे कोई चीज लिखी हुई है 10 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल, इसका रिमाइंडर ऑलवेज 0 होगा, दिस विल बी ऑलवेज डिविजिबल बाय दिस। अब अगर तुम्हारा लाइक 18 फैक्टोरियल को लाइक कुछ भी कॉम्बिनेशन लिखा है, 1 फैक्टोरियल 17 फैक्टोरियल, कोई भी कॉम्बिनेशन लिखा हुआ है जिसका सम 18 आ रहा है, सो दिस विल बी ऑलवेज डिविजिबल, ठीक है। इसका रिमाइंडर हमेशा 0 होगा। सिंपल, जस्ट अपने माइंड में ये बात रखो, कहीं पर यूजफुल हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, ये सीरीज है 1 इंटू 1 फैक्टोरियल, 2 इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस 3 इंटू 3 फैक्टोरियल टिल n इंटू n फैक्टोरियल। सम ऑफ दिस सीरीज इज n प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस 1। रिमेंबर दिस थिंग। तुम्हारे लिए एक होमवर्क है, ये सीरीज डिराइव कैसे हुई है इसका यूज करके, ठीक है। इसको यूज करके सीरीज डिराइव की गई। सीरीज का लाइक आंसर ये ऐसे निकाला गया है। ये प्रूफ तुम्हें खुद से ट्राई करना है। कर लेते हो तो ठीक है, नहीं कर पाते हो तो कोई बात नहीं, अभी छोड़ देना। वो धीरे धीरे एंड में जब क्वेश्चन वगैरह करोगे तो खुद से समझ में आ जाएगा। मैं ये तुम्हें प्रूव करके दिखाने जा रहा हूं, ठीक है। तो n इंटू n फैक्टोरियल इज गिवन n प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस n फैक्टोरियल। इसको प्रूव करना तो आसान है। लाइक जैसे 12 फैक्टोरियल होता है, तो व्हाट इट मीन्स ऑफ 12 फैक्टोरियल? 12 फैक्टोरियल मीन्स मल्टीप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर्स। सो जनरली हम ऐसे लिखते हैं ना, 12 से स्टार्ट करते हैं, हम उल्टा लिखते हैं ऑलवेज। ऐसे हमारी लिखने की हैबिट है ना, सब लोग ऐसे ही लिखते होंगे। कोई ऐसे ऐसे तो बहुत कम रेयर लिखते हैं, मैंने अभी तक तुम्हें ऐसे बताया, बट जनरली हम लोग ऐसे ही लिखते हैं ना फैक्टोरियल को। तो n प्लस 1 फैक्टोरियल के बाद नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा? -1, एक कम हो जाएगा ना, 12 से 11 आता है, तो n प्लस 1 फैक्टोरियल के बाद नेक्स्ट नंबर आएगा n प्लस 1 माइनस 1, तो दैट इज n फैक्टोरियल। So this can be written like this, simple. Now take n factorial as a common. So this is n plus 1 minus 1. This get cancelled. So this is n into n factorial, LHS equal to RHS, hence proved. ठीक है, ओके। तो ये तीन चीजें थी। तो ये सीरीज इंपॉर्टेंट है, याद रखना, और ये भी डिविजिबिलिटी से रिलेटेड है, याद रखना, और ये भी सिंपल सी चीजें याद रखना, ठीक है। अगर याद करने का तरीका बताऊं तो देखो दोनों सेम है, लगभग सेम है। यहाँ पर जस्ट 1 है, यहाँ पर जस्ट n है, सिंपल, ठीक है। ओके, तो अब ये लास्ट इसमें पार्ट है, दो चीजें हैं, लाइक लास्ट नॉन जीरो डिजिट एंड लास्ट 2 नॉन जीरो डिजिट कैसे फाइंड करते हैं। अब लास्ट 2 ये क्या चीज है, और पहले मैं ये एक्सप्लेन करता हूँ, देन वी विल सी हाउ टू फाइंड दिस थिंग। देखो अभी हमने देखा कि लाइक जीरोस कैसे फाइंड करें। तो लाइक अगर तुम कोई भी नंबर लिखोगे, कोई भी फैक्टोरियल लिखो, लाइक आफ्टर 5, लाइक आफ्टर 4 बेसिकली, 1 फैक्टोरियल लिखोगे तो 1 आएगा, 2 लिखोगे तो 2 आएगा, 3 लिखोगे तो 3 आएगा, 6 आएगा, 4 लिखोगे तो 24 आएगा। इसके बाद तुम कोई भी फैक्टोरियल लिखोगे और अगर फैक्टोरियल की वैल्यू निकालोगे तो दैट विल बी ऑलवेज एंडिंग विद द 0। 5 फैक्टोरियल कितना होता है? 120। बिकॉज हो क्या रहा है, ये मल्टीप्लीकेशन है सारे, है ना। फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन है, और
हो क्या रहा है कि टूज हैं, और जैसे ही 5 आता है वो 0 बन जाता है। देखो यहाँ पर जैसे ही 5 आया वो 0 बन गया, तो एंड पे 0 आ जाएगा ना। तो 4 फैक्टोरियल के बाद जितने भी तुम फैक्टोरियल्स लिखोगे उनका वैल्यू 0 से एंड हो रहा होगा, और ये जीरोस बढ़ते जाएंगे। 10 फैक्टोरियल में कितने, 2 जीरो हो जाएंगे। 15 फैक्टोरियल में कितने जीरो हो जाएंगे, एक 5 यहाँ से, एक 5 यहाँ से। टूज तो हमारे पास अबंडेंट है, वी डोंट नीड टू वरी अबाउट टूज। एक 5 यहाँ से, एक 5 यहाँ से, एक 5 यहाँ से, 3 जीरोज आ जाएंगे। 20 फैक्टोरियल कितने हो जाएंगे, एक 5 यहाँ से, अब एक और 5 बढ़ जाएगा ना, तो 4 5 हो जाएंगे, 4 जीरो हो जाएंगे। 25, 25 में बताओ, 25 में कितने 5 होंगे, 5 नहीं होंगे, क्योंकि 25 में अब देखो टू टूज बढ़े हैं। 25 इंटू लिखोगे ना 24, तो इसमें कितने टू टूज बढ़े हैं, तो 4 से सीधा 6 टूज आ जाएंगे, 6 जीरोज आ जाएंगे। ये बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, तुमसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एंड आई विल गिव यू द क्वेश्चन इन द सीट रिलेटेड टू दिस। तुम्हें एक चीज समझ में आई कि लाइक अगर 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल ऐसे करके फैक्टोरियल्स लिखोगे, और 4 फैक्टोरियल के बाद कोई भी फैक्टोरियल लिखोगे वो जीरो से एंड हो रहा होगा, है ना। 5 फैक्टोरियल में एक जीरो होगा, 10 में 2 होंगे, एंड 15 में 3 होंगे, 20 में 4 होंगे, 4 जीरो से एंड हो रहा होगा। 25 6 जीरो से एंड हो रहा होगा। तो अब देखो एक इंटरेस्टिंग सी चीज ये है यहाँ पर ऑब्जर्व करने वाली, कि देर इज नो फैक्टोरियल जिसके एंड में, जिसकी वैल्यू के एंड में 5 जीरोस आए। कोई फैक्टोरियल पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। देर इज नो, नोट डाउन दिस थिंग केयरफुली, इसको कहीं पर एक पॉइंट बना के ऐसा कुछ लिख लो मार्क करके, कि जैसे ये है ना जी, 4 जीरोज है, कोई एन फैक्टोरियल के एंड पे नंबर ऑफ जीरोस कोई जरूरी नहीं है कि हर वैल्यूज के लिए हो, कि लाइक 1 जीरो आया, 2 जीरो आए, 3 आए, 4 आए, 5 जीरोज नहीं है। देर इज नो फैक्टोरियल्स जिसकी वैल्यू के एंड में 5 जीरो हैं। ऐसे बहुत सारे नंबर हैं जो पॉसिबल नहीं है। वी डोंट नीड टू वरी अबाउट कि कौन कौन से नंबर है, जस्ट तुम्हें पता होना चाहिए कि इट्स नॉट पॉसिबल कि 1 2 3 4 सारे फैक्ट जीरोज आए एंड पे, ठीक है। 5, देर इज नो फैक्टोरियल जिसके एंड पे, जिसकी वैल्यूज के एंड पे 5 जीरोज हैं, ऐसा कोई फैक्टोरियल नहीं है, ठीक है। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। तो अब 0 0 तो आ गया, 0 0 तो आ गया। अब क्वेश्चन है ये है कि नॉन जीरो डिजिट फाइंड करना है, कि लाइक जैसे 5 फैक्टोरियल लिखते हो ना, तो आता है 120, तो तुम्हें ये फाइंड करना है। अब जैसे तुम 25 फैक्टोरियल लिखते हो ना, तो कितने जीरो मैंने इसमें बताया, 6 जीरोस बताए, तो ऐसे कुछ होगा, 6 जीरोस होंगे, फिर यहाँ पर कोई एक नॉन जीरो डिजिट होगी, ये तुम्हें फाइंड करनी है। हाउ टू फाइंड दिस नॉन जीरो डिजिट। अब जीरोस कितने भी हो, कितनी भी बड़ी नंबर हो, कितना भी बड़ा फैक्टोरियल हो, यू हैव टू फाइंड दिस नॉन जीरो डिजिट, लास्ट नॉन जीरो डिजिट, ठीक है। लास्ट नॉन जीरो डिजिट, या फिर राइट हैंड साइड से फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। इधर से देखोगे तो लास्ट है, और इधर से देखोगे तो फर्स्ट, ठीक है। तो ये कैसे फाइंड करें, तो लेट्स सी अप्रोच। मैं तुम्हें एक फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ, यूजिंग दैट यू कैन सॉल्व वेरी इजिली। तो कोई भी नंबर दिया हो n इक्वल्स टू 5a प्लस बी फॉर्म, उसको रिप्रेजेंट करो 5a प्लस बी फॉर्म में। इसका और मैं जनरलाइज सिंपल वर्जन तुम्हें बताता हूँ, 5 टू द पावर na प्लस बी फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, ठीक है। जनरली लोग तुम्हें सिर्फ 5a प्लस बी बताएंगे, तो उससे क्या होता है कि जो बड़े नंबर्स होते हैं वो प्रॉब्लमेटिक हो जाते हैं। जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इससे कोई भी नंबर, कितना भी बड़ा नंबर हो, इजिली कर सकते हो, ठीक है। अगेन लोग तुम्हें ये वाला बता रहे होंगे, बट आई एम गोइंग टू टेल यू दिस वन, जो इजिएस्ट है किसी भी बड़े नंबर के लिए, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, यू कैन सॉल्व ऑल दोस क्वेश्चन। नाउ पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, फिर लाइक तुम्हें आराम से मैं एक्सप्लेन करता हूँ। 2 टू द पावर n टू द पावर a फैक्टोरियल b फैक्टोरियल, ये जो वैल्यू आएगी, लेट्स से a, ठीक है। ये फॉर्मूला है बेसिकली। करना क्या है तुम्हें, अब ये मैं एग्जांपल से तुम्हें इंप्लीमेंट करके दिखा देता हूँ। सपोज तुम्हें 26 है, 26 फैक्टोरियल, यू हैव टू फाइंड द लास्ट नॉन जीरो डिजिट ऑफ द 26 फैक्टोरियल को, मतलब जब वैल्यू निकालोगे 26 फैक्टोरियल की, तो उसमें लास्ट नॉन जीरो जो डिजिट होगी वो निकालनी है तुम्हें। तो पहला स्टेप ये है, 5a प्लस बी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। तो 5a प्लस बी को अब मैं कह रहा हूँ कि इसमें करो, इसमें करोगे तो आएगा ये 25, है ना, 25 आ जाएगा ना।
25 इंटू 1 प्लस 1। ठीक है, ये समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? 5 एन सिंपल। जनरली लोग तुम्हें क्या बताते हैं, लोग जो तुम्हें बताते हैं जनरली जो तुम पाओगे n इक्वल टू 1 पे बताते हैं। ठीक है, वो 5a प्लस बी बताएंगे, बट मैं कह रहा हूँ कि 5a प्लस बी की जगह ये करो, क्वेश्चन और आसान हो जाएंगे। ठीक है, तो अब जैसे ये करना है तुम्हें, तो अब तुमने, अब यहां पर देखो n की वैल्यू कितनी आई? n की वैल्यू 2 है, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 1 है। इसमें पुट कर दो, इसमें पुट कर दो, l इसको रिप्रेजेंट करते हैं, l ले लेते हैं इसको, लास्ट डिजिट है ना, लास्ट डिजिट। 2 टू द पावर 2, a 1 है, 1 फैक्टोरियल दैट इज 4। तो 4 इज द आंसर। इसका जो लास्ट नॉन जीरो डिजिट होगा दैट इज 4। ये नोट डाउन कर लो, आई होप समझ में आया। एक और एग्जांपल करते हैं। लेट्स टेक कोई भी नंबर ले लेते हैं, लेट्स 256 फैक्टोरियल। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, 256, तो दिस इज 5, 125, 120, 625 निकल जाएगा, है ना। अब देखो अगर इस नंबर को इससे करते तो बहुत बड़ा नंबर होता, प्रॉब्लम होती, बट इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इससे कर लेते हैं 5 टू द पावर 2, 125, 125 इंटू 2 आ जाएगा 250, 250 प्लस 6। ठीक है, बन गया। तो n की वैल्यू 2 हो गई, a की वैल्यू 2 हो गई, b की वैल्यू 6 है। नाउ l इक्वल टू लास्ट नॉन जीरो डिजिट 2 टू द पावर 2 टू द पावर 2 a फैक्टोरियल b फैक्टोरियल। तो दिस इज 4 4 16। अब इसमें भी क्या करते जाओ, जैसे 16 आया तो 16 हटाओ, फोकस सिर्फ लास्ट डिजिट पे रखो, सिर्फ लास्ट डिजिट पे फोकस करो। कितना भी बड़ा नंबर उसकी जस्ट लास्ट डिजिट देखो, 4, 6 की लास्ट डिजिट क्या होती है, लास्ट नॉन जीरो डिजिट पर। ठीक है, 6 फैक्टोरियल तुम्हारा क्या होता है, 720 होता है। 720 में ऐसा नहीं कि सिर्फ जीरो ले लिया, लास्ट नॉन जीरो डिजिट। ठीक है, बी केयरफुल, मैंने यहाँ पर बोला लास्ट डिजिट, बट तुम्हें लास्ट नॉन जीरो डिजिट। ठीक है, तो इस जीरो से कोई मतलब नहीं है ना, इससे कोई मतलब नहीं। चलो जीरो रख लेते हैं तुम्हें जस्ट दिखाने के लिए। 6 4 24, 24 का 4 20, तो यह है 80 सपोज। तो अब 80 जीरो नहीं, बस 8 इज अवर आंसर। 8 विल बी द लास्ट नॉन जीरो डिजिट। ठीक है, इसमें भी तुम्हें ये लास्ट नॉन जीरो डिजिट पे फोकस करना है, इसमें भी समटाइम जीरो आ जाएगा। सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट जीरो, यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन द लास्ट नॉन जीरो डिजिट हेयर ऑल्सो। फाइन, सिंपल है, कोई प्रॉब्लम, आई होप कर लोगे। अब देखो जो लाइक, चलो मैं तुम्हें एक एग्जांपल समझा भी देता हूँ, तुम्हें शायद वो आसान लगे जो दूसरे लोग बताते हैं, बट उससे क्या होता है कि स्मॉलर नंबर सॉल्व कर सकते हो बट बड़े नहीं सॉल्व कर सकते हो। तो अगर सपोज उस मेथड से करते इस क्वेश्चन को, अगर लाइक जो तुम्हें नॉर्मल मेथड बताया जाता 5a प्लस बी फॉर्म, तो इसको क्या करते 5 इंटू कितना, कितने 5 5 1 है ना, प्लस 1। तो ये फिर ऐसे सॉल्व करते 2 टू द पावर a। तो ये खुद में एक क्वेश्चन बन जाता, समझ रहे हो। अगर जो नॉर्मल मेथड है ये 5a प्लस बी, अगर उससे करोगे तो खुद में एक क्वेश्चन बन जाएगा। अब इसका फाइंड करो, फिर इसका फाइंड करो। सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग दिस इज द बेस्ट थिंग, ये बेस्ट अप्रोच है इस क्वेश्चन की। अच्छा भैया ऐसा क्यों होता है, वी डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट मच, हमें समझने की जरूरत नहीं है। जो लगेगा, जो मुझे लगेगा कि ये फॉर्मूला एक्सप्लेन करने की जरूरत है, दैट आई विल बी एक्सप्लेनिंग। जो नहीं जरूरत है, आई विल बी लाइक जस्ट टेलिंग यू द वे। ठीक है, ना लास्ट पार्ट लाइक लास्ट टू नॉन जीरो डिजिट्स। तो लाइक अभी हमने जो देखा, लाइक वी वर फाइंडिंग द लास्ट डिजिट। नाउ फॉर एग्जांपल 6 फैक्टोरियल इज 720, so we have find 2 है ना, last non zero digit. Now I'm gonna tell you how to find the 7 also, how to find 72. So let's see, the process is like almost same, just a little different here. So you're gonna represent n 5a plus b form, and I'm not gonna get again इतना ज़्यादा इसमें डिटेल में, जैसे इसमें I have like explained you this thing for generalized form.
because there is very rare chance कि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा. So I'm gonna just tell you the like normal thing. ठीक है, n equal to 5a plus b form, and then last two digit of number will be 12 to the power a factorial. ठीक है, 5a plus 1 से स्टार्ट होगा, 5a plus 2 जाएगा till 5a plus b. आई होप समझ में आया. लेट मी एक्सप्लेन दिस विद लाइक विद एग्जाम्पल. एग्जाम्पल के साथ करते हैं. लेट्स टेक 24 factorial. You need to find the last two non-zero digit of 24 factorial. So that can be represented at 5 into like 4 plus 4. So L equal to A equal to 4 है तुम्हारा, B भी 4 है. So put in this formula 12 to the power 4 into A factorial, that is 4 factorial, and this is 5 4, that is 21 ना, 21 21 22 23 ना, 1 2 3 4 1 2 3 4 तक जाएगा, 24 इतना ही जाएगा. 1 2 3 4 B तक जाएगा ना, तो B 1 से स्टार्ट होगा, B तक 4 तक जाएगा. अब 4 फैक्टोरियल कितना होता है तुम्हारा? 4 फैक्टोरियल 24. तो अब जस्ट इसको क्या करना है तुम्हें, जस्ट कैलकुलेटर में कर लेना है एंड यू विल गेट द आंसर. जस्ट इसको अब 12 का स्क्वायर तुम्हें पता है 144. 12 4 को देखो क्या करोगे, 12 टू द पावर 4 को क्या करोगे, 12 का स्क्वायर तुम्हें पता है 144 144. और लास्ट टू डिजिट फाइंड करनी, तो जस्ट यू नीड ओनली लास्ट टू डिजिट. तो जस्ट इसको हटा दो, इस पूरे को कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई करते जाना, लास्ट टू डिजिट जो आएंगी वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा. ठीक है, दिस इज द वे टू फाइंड द लास्ट टू नॉन जीरो डिजिट ऑफ एनी गिवन फैक्टोरियल. पॉइंट सिंपल है. like I don't think we need to further do the question for this thing. There is very rare chance this question will be asked. So I hope you understand, but समझ लेना आ जाता है तो make sure you are able to solve. ठीक है, कुछ complex नहीं करना इसमें. So this was all about factorials. We started from very basic and we covered all type of things that can be asked. अब factorial में एक चीज बचती है, that is like I think Williamson theorem कुछ है, that is for the remainders. तो वो हम रिमाइंडर में देखेंगे. Apart from that, we have covered everything in the factorials. So I hope you guys like the video. And again, I have tried, like I have given you all the best possible methods that can be there. I bet on this thing. So that's it for today. Make sure you join the Telegram channel and subscribe to this channel, YouTube channel. So let's see you in the next video.